خداوند کے کلام میں سے آج ہم داؤد کے بارے میں سیکھیں گے. اب before I begin, میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ داؤد کے کچھ اچھے یا برا کرنے سے پہلے پبلکلی جو ہمیں جہاں تک پتا ہے کچھ بھی اچھا برا کرنے سے پہلے خداوند نے سیموئیل کو بتا دیا تھا کہ یہ بندہ جو آنے والا ہوگا وہ میرے دل کے موافق ہوگا. سو آج کا میسج اس لیے نہیں ہے کہ داؤد بہت گنہگار تھا, بہت برا شخص تھا, خداوند اس سے پیار نہیں تھا کرتا. آج کا میسج اس لیے کہ ہم کرسچنز, ہم خدا کے لوگ جتنا بھی خداوند سے دور چلے جائیں, جب ہم معافی مانگ کے خداوند کے پاس آتے ہیں خداوند ہمیں بحال کرتے ہیں. اور خداوند نے اگر پرانے عہد نامے میں کہا کہ داؤد میرے دل کے موافق ہے, اس کی غلطیوں کے باوجود کیونکہ خدا نے اس کو معاف کر دیا تھا, نئے عہد نامہ میں ایمان کی کتاب میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کری گئی کہ داؤد میرے دل کے موافق ہے. It means کہ he had not fallen from the grace. It means کہ خداوند کا پیار ہمیشہ اس کے لیے سیم تھا. خداوند کا پیار چینج نہیں ہوا تھا. ہاں خداوند ڈسپلیس ہوئے, ناراض ہوئے, دکھی ہوئے, لیکن does God change؟ کیا خداوند تبدیل ہوتے ہیں؟ خداوند ہمیشہ یکساں ہے. ہم پہلی سلائڈ پڑھیں گے, دوسرا سیموئیل 11:27 آئے گا. اور جب صوم کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ دیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا. پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا. اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا. جو کام داؤد نے کیا خداوند اس سے ناراض ہو گئے. اب یہ کیا کام تھا؟ ہم سب جو بائبل پڑھتے ہیں, چرچ آتے ہیں, مسیحی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کیا کام تھا. داؤد سے ایک غلطی ہوئی, کافی بڑی غلطی ہوئی, لیکن ہم اس سٹوری کی طرف دوبارہ آئیں گے. غلطیاں کیوں ہو جاتی ہیں ہم سے؟ ڈسٹریکشنز کی وجہ سے. ڈسٹریکشن ہوتا ہے کہ ہماری اٹینشن ایک طرف ہونی چاہیے, ہماری توجہ ایک طرف ہونی چاہیے, اور شیطان کو ہم اوپن ڈور جب دے دیتے ہیں, جب ایک اوپن دروازہ دے دیتے ہیں, تو وہ ہماری اٹینشن, ہماری توجہ کسی اور طرف کرا دیتا ہے. ایسا ہی ہے سم ٹائمز ڈسٹریکشنز جو ہماری توجہ سے ہمیں چیزیں ہٹاتی ہیں وہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ شیطان بھی ایک نورانی فرشتہ بن کر ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو. sometimes those things are good. میری اور مارتھا, مریم اور مارتھا کس میں بیزی تھی؟ اچھے کام میں, منسٹری ورک میں, خداوند کے لیے کھانا وغیرہ پکا رہی تھی, لیکن وہ ڈسٹریکٹڈ تھی, اس کی توجہ ہٹی ہوئی تھی. خداوند نے مریم کے بارے میں کیا کہا؟ مریم نے اچھا حصہ چنا. تو ڈسٹریکشنز, چیزیں جو ہماری توجہ کسی اور طرف لے جاتی ہیں, sometimes the good things, جیسے خداوند برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرتے ہیں, شیطان اس کے اپوزٹ کرتے ہیں عزت دے دی شیطان کرتا ہے. جیسے خداوند برائی میں سے بھلائی پیدا کرتے ہیں, شیطان بھلائی میں سے برائی پیدا کرتا ہے. اسٹارٹ میں دکھاتا ہے کہ something کچھ بھلا ہے, کچھ اچھا ہے, لیکن اصل میں وہ ڈارکنس ہوتی ہے, اصل میں وہ برائی ہوتی ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند داؤد سے پیار کرتے تھے. اب میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ داؤد کے کچھ بھی اچھا اور برا کرنے سے پہلے خداوند نے کہہ دیا یہ میرے دل کے موافق ہے. اب ہم داؤد کی سٹوری پہ دوبارہ چلتے ہیں. لیٹس ریڈ اباؤٹ اٹ. سیکنڈ سیموئیل, دوسرا سیموئیل 11 پہلی آیت. اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں, داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا, اور وہ انہوں نے بنی عمون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا, اور داؤد یروشلم میں ہی رہا. ہم سٹوری پوری پڑھیں گے کہ کیا چیز تھی جس سے خداوند ناراض ہوئے داؤد سے, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے یہ ہے کہ جب بادشاہ جاتے تھے جنگ پہ, داؤد یروشلم میں ہی رہا. اب نہیں لکھا وہ کیوں رہا, بس یہ ہے
کہ وہ لکھا ہے کہ جب بادشاہ جاتے تھے جنگ کے لیے داؤد اسٹیٹ بیک، داؤد نے بس یوآب کو جانے دیا اور وہ یروشلم میں ہی رہا۔ مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے اس کے بعد ہی داؤد سے غلط کام ہوا جس سے خداوند ناراض ہوئے۔ جب ہم اپنے پرپس سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں، جب ہم اس کام سے، اس زندگی سے، اس پرپس سے جو خداوند نے آپ کی زندگی کے لیے رکھا، آپ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ ہٹتے ہیں، تب آپ شیطان کو ایک اوپن ڈور دیتے ہیں، دروازہ دیتے ہیں کہ وہ کام کرے اپنا۔ ادھر مجھے لگتا ہے داؤد کو جنگ پہ جانا چاہیے تھا لیکن وہ گھر رہا۔ لکھا نہیں ہے کیوں گھر رہا، بس اتنا پتا ہے کہ جب بادشاہ نکلتے تھے جنگ کے لیے داؤد یروشلم میں ہی رہا۔ سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور کہیں کہ خداوند جہاں آپ کہیں گے میں جاؤں گا، میں جاؤں گی۔ آگے بڑھیے پلیز۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہ کے محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ اب داؤد اس ٹائم جب بادشاہ کو جنگ پہ جانا چاہیے تھا وہ یروشلم میں تھا۔ اب ادھر لکھا ہے کہ داؤد ٹہلنا شروع ہو گیا۔ اب ہیبرو میں اگر ڈیپر میننگ میں جائیں، یہ جو واکنگ ہے یہ عام واکنگ ہے کہ بس چلنا پھرنا، یہ ٹہلنا اس سینس میں کہ بے چینی، ریسٹلیسنس، ان ایزینس، کہ کسی طرح کی بے چینی تھی داؤد کو۔ شاید یہی بے چینی کہ میں وہاں نہیں ہوں جہاں خداوند نے مجھے پوزیشن کیا ہے، شاید یہی چیز اس کو بے چین کری، اس لیے وہ سو نہیں تھا پا رہا، وہ چھت پہ ٹہلنے چلے گیا۔ اگلی بات جو مزے کی ادھر لکھا ہے، اس نے عورت کو دیکھا، یہ نہیں لکھا عورت پہ نظر پڑی، دیکھا is another level، نظر پڑی، نظر ہٹا بھی سکتا تھا بٹ وہ ٹیمپٹیشن میں گر گیا۔ اس نے عورت کو دیکھا اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ وہ کا خوبصورت ہی ہوتا ہے رائٹ، موسٹ آف دی ٹائم۔ اب آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے اس سے کسی اور کے ساتھ بھی ایسے ہوا، کسی نے کسی چیز کو دیکھا، خوبصورت لگی، اچھی لگی؟ یس ہے ہوا نے پھل کو دیکھا، لسٹ آف دی آئی، آنکھوں کی خواہش، اور اس کو پلیزنگ لگا، خوبصورت لگا، کھانے کے لیے اچھا لگا، لسٹ آف دا فلیش، اس کی فلیش کو اچھا لگا، اس کے جسم کو اچھا لگا، اور اس کو یہ لگا کہ کھاؤں گی تو مجھے وزڈم ملے گی، جیسے شیطان نے کہا مجھے عقل ملے گی۔ یوسف کو بھی انہی چیزوں سے آزمایا گیا تھا، لسٹ آف دی آئی، لسٹ آف دا فلیش، گین آف لائف، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، اور کیا حاصل ہوتا ہے، حاصل جو زندگی میں ہوتا ہے۔ یوسف تو بھاگا، ایسا ہی ہونا چاہیے جب ٹیمپٹیشن اور رن۔ ادھر نہیں لکھا کہ داؤد بھاگا، اسے لکھا اس نے دیکھا، نظر نہیں پڑی، اس نے دیکھا، بیسکلی وہ ٹیمپٹیشن میں گر گیا۔ ہم سلائیڈ نمبر 4 پہ جائیں گے۔ دوسرا ساموئیل 11 باب 27 آئے، اور اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ ہم بیک جہاں سے سٹارٹ کیا تھا ہم وہاں واپس آ گئے ہیں۔ اب اس کے بیچ میں کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب داؤد نے اسے دیکھا، اسے اچھی لگی، ٹو میک دا لانگ اسٹوری شارٹ، اسٹوری کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں، داؤد کو وہ اتنی اچھی لگی، داؤد نے اسے اپنے پاس بلا لیا، اس کے ساتھ سویا، وہ پریگننٹ ہو گئی، اور پتہ لگا ہے کہ یہ کون ہے، بعد پہلے پتہ لگوا لیا تھا یہ کون ہے، پتہ چلا جی وہ یوریا کی بیوی ہے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح یوریا کو وہ گھر بھیجے تاکہ اس کا گناہ چھپ جائے، اور پتہ چلے کہ وہ تو ہسبینڈ کے ساتھ تھی۔ اب 2-3 دفعہ اس نے ٹرائی کی، یوریا نہیں کیا۔ اب اس نے کہا اس گناہ کو چھپانے کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہیومنز جب گناہ کرتے ہیں کیا ٹرائی کرتے ہیں؟ وہ چھپ جائے کسی طرح۔ وہ بھی ٹرائی کرتا رہا، پھر اس کے ذہن میں یہ آیا میں اس کو مروا ہی دیتا ہوں۔ اب آپ کو سٹوری شاید پتا ہو، اس نے جہاں جنگ سب سے زیادہ فیئرس تھی، جہاں جنگ سب سے زیادہ تیز تھی، وہاں اس نے اس کو کھڑا کروا دیا کہ اس کو وہاں کھڑا کرے تاکہ یہ مر جائے، بیسکلی اس کا قتل کرا دیا۔ اب اس کے بعد قتل کے بعد اس عورت کو گھر لے آیا، بچہ ہوا، اور خداوند داؤد سے ناراض ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ
दाऊद 9 महीने तो सिन में ही रहा। कहीं नहीं लिखा कि उस टाइम्स बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी से और उसके बीच में कहीं भी दाऊद की माफी मांगने का जिक्र नहीं है कि दाऊद ने माफी मांगी ऐसे, और इतना मतलब गुनाह को छुपाने के लिए और गलतियां करता जा रहा है। ह्यूमंस की जो नेचुरल कुदरती चीज है वो ये है कि वो छुपते हैं। गलतियों सबसे पहला काम क्या है, खुदा के पास नहीं आते। नेचुरल जो इंसान की खुदावन के पास नहीं आते कि खुदावन मुझे माफ कर। सबसे पहले क्या चीज करते हैं, वो छुपते हैं, गुनाह को छुपाते हैं, छुपते हैं। आदम हवा ने क्या किया, खुदावन की प्रेजेंस से छुप गए। इधर ये क्या कर रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कि गुनाह के बाद दाऊद ने खुदावन की हुजूरी में टाइम गुजारा हो। वो गुनाह को छुपा ही रहा है बेसिकली, किसी तरह ये गुनाह ना पता चले उसका या कुछ ना कुछ हो जाए। अब जब इंसान गुनाह करता है, गैर मसीहों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसीह के लोग जो खुदावन से प्यार करते हैं उनके लिए गुनाह करना इजी नहीं होता। गुनाह के बाद एक चीज होती है जो उन्हें और खुदावन से दूर करती जाती है। वो क्या होती है, गिल्ट। गिल्ट की उर्दू क्या है, जुर्म, एहसास जुर्म। ऐसा ही मैं ठीक कह रही हूँ? जब लोग खुदा से प्यार करते हैं, जब उनसे गलती होती है, they beat themselves up, उनको बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता। कुछ तो ऐसे हैं जो गुनाह करते रहते हैं, इतना उनका दिल सख्त हो जाता है कि बाद में उनको उस चीज की होली स्पिरिट की कन्विक्शन भी नहीं होती, उनको पाप में उभारते रहते हैं, लेकिन उनको इतना खुदा से दूर जा चुके होते हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जिनके दिल अभी भी सॉफ्ट होते हैं, जिनके दिल अभी भी खुदावन के साथ होते हैं, उन्हें फर्क पड़ता है। दाऊद को फर्क पड़ा। दाऊद को क्या फर्क पड़ा उसके बारे में हम सीखते हैं ज़बूर 32:3 और 4। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के तिरहाने से मेरी हड्डियां घुल गई, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। ये मैं स्टडी कर रही थी, गर्मियों की खुश्की से ही क्या, इस बात का क्या मतलब है? बेसिकली जैसे पानी गर्मी में इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, वो कह रहे मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ, जब मैं गुनाह में था, मैं खामोश रहा, गुनाह का इकरार नहीं किया, मेरी ताकत खुद से चले गई, एनर्जी चले गई। ये आदमी पैलेस में है, महल में है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन he is miserable। वो खुश नहीं है क्योंकि उसने गुनाह किया। वो खुश नहीं है क्योंकि वो खुदा से प्यार करता है और उसको पता है उससे गलती हुई, लेकिन इधर भी इकरार नहीं किया, इधर भी कन्फेस नहीं किया कि मुझसे गलती हुई, खुदावंद मुझे माफ कर। परेशान है, गिल्ट में है, बस यही सोचता रहा है किसी तरह मेरा गुनाह छुप जाए। कहा जाता है और सही भी है कि दाऊद ने तकरीबन 10 अहकाम के 6 अहकाम इस गलती से तोड़ दिए। डैडी आप रीड करेंगे कौन कौन से अहकाम तोड़े उसने? मेरे हुजूर तू कहना अपनों को ना मानना, उसने खुदा के हुजूर में ही अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा दिया। और दूसरा गुनाह छठा हुक्म, उसने कत्ल किया। तीसरा गुनाह 7वां हुक्म, उसने ज़िना किया। 8वां हुक्म एक और गुनाह, उसने चोरी की थी। और 9वें हुक्म में एक और उसने गुनाह किया, उसने झूठ बोला और धोखा दिया। और 10वें हुक्म के मुताबिक उसने लालच किया था। लेकिन खुदावंद इतने अच्छे हैं, इतने रहीम हैं, इतना प्यार करने वाले हैं कि हम देखते हैं कि खुदावंद ने दाऊद को उस हालत में नहीं रहने दिया। खुदावंद को पता था कि इंसान की तो कुदरत ही ऐसी है, ये माफी खुद से नहीं मांगेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। खुदावंद ने क्या किया? नातन नबी को भेजा। आज भी जब हम गलती करते हैं तो खुदावंद अपने कलाम से हमें उभारते हैं किसी तरह। अभी मैं मैसेज दे रही हूँ, शायद खुदावंद मेरे जरिए आपसे बात कर रहे हो। खुदावंद ने भी नातन नबी को भेजा। खुदावंद इतने अमेजिंग है क्योंकि अगर इंसान पे छोड़ दे ना तो इंसान की तो कोई, हम लोग तो खुदा के पास आते ही नहीं। ये पाक रूह ही है, ये खुदावंद ही है जो पहले हम खुदावंद के खिलाफ गुनाह करते हैं, फिर खुदावंद ही मोहब्बत से भरे खुदावंद किसी ना किसी तरह हमें उस राह पे लेकर आते, किसी के थ्रू या खुदा के कलाम से, कि हम तौबा कर लें, हम अपने गुनाह का इकरार करके उसको तर्क करें। हम पढ़ेंगे कैसे खुदावंद ने नातन नबी को भेजा।
और खुदावन ने नातिन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में दो शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। आगे नेक्स्ट स्लाइड है, यू कैन। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ का की एक पटिया के सिवा कुछ ना था। जब उसने खरीद कर पाला था, वो उसके बाद बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसके नवाला में से खाती और उसके प्याला में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, तो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गला में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पका लिया। आगे भी पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 12:5 आयत। तब दाऊद का गज़ब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा, खुदावंद की हयात की कसम, वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है, सो उस शख्स को उस भेड़ का 4 गुना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे कस ना आया। इमेजिन एक कोर्ट रूम है, अदालत लगी हुई है और उसका जज दाऊद है, और वो कैसी सजा दे रहा है जिसने ये काम किया, किसी की भेड़ ले ली, उसको यूज कर लिया, वो कैसी अदालत लगा रहा है। हम कहते हैं ना खुदावंद हार्श है, समटाइम्स लोग कहते हैं खुदावंद इतना लविंग है, ऐसी पनिशमेंट। इधर दाऊद को देखें कैसी सजा दे रहा है। लॉ के हिसाब से जो है एहकाम के हिसाब से कोई किसी की कुछ चुराए तो उसे 4 गुना वापस करना है। इधर दाऊद तो कह रहे काबिल कत्ल है। शुक्र है इंसान हमारी इजाजत नहीं करते, हमारा जज खुदा। इधर दाऊद को देखे कैसी अदालत लगा रहा है दाऊद, काबिल कत्ल कह रहा है। ये तो लॉ में भी नहीं है। आपको समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अदालत लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल दाऊद उसका जज है और नातन नबी आके उसको स्टोरी बता रहे हैं कि किसी ने किसी के साथ ऐसे ज्यादती की, ऐसे बुरा किया, और दाऊद कह रहे ये इंसान तो काबिल कत्ल है, इसके साथ ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि नातन नबी क्या कहता है। नातन नबी ने, दाऊद ने जब ये कहा, नातन नबी ने उसे कहा भाई ये आप ही हैं, ये आप ही की बात हो रही है। क्या नातन नबी ने उसे बताया कि ये आप ही की बात हो रही है। नातन नबी ने उसे कहा खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की। अब नातन नबी उसे बता रहे हैं, ये स्लाइड नहीं है, मैं खुद पढ़ूंगी। नातन नबी ने बताया कि जिसकी कह रहे कि इस बंदे की अदालत करे, ये इंसान तू ही है। अब उसे बता रहा है उसने क्या क्या किया। तूने खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की, क्योंकि और खुदावन कहते हैं क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना। दाऊद ने जब गुनाह किया उसने खुदावन को हकीर जाना। जब हम मसीही होकर खुदावन को प्यार करते हुए गुनाह करते हैं, हम खुदावन को बेसिकली हकीर जान रहे होते हैं कि खुदावन आपको नहीं मैं किसी और चीज को चूज कर रहा हूँ, आपको नहीं मैं किसी और बुत को चूज कर रहा हूँ, आपको नहीं मैं किसी और ख्वाहिश को चूज कर रहा हूँ। हम खुदावन को हकीर जानते हैं। खुदावन दाऊद को कह रहे तूने मुझे हकीर जाना। ये दूसरा शमूएल 12:9 और 10 आयत से मैं पढ़ रही हूँ। खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की। तब दाऊद कहता है, पहले कहीं उसके इकरार का जिक्र नहीं, तब दाऊद कहता है कि मैंने गुनाह किया। तब वो खुदावन का कहता है कि मैंने खुदावन के खिलाफ गुनाह किया। 9 महीने तकरीबन एटलीस्ट जब तक बच्चा था तब तक तो वो गिल्ट भी था ना। उससे पहले कब ये बात शुरू हुई, कोई उसके इकरार का जिक्र नहीं। जब खुदावन ने अपने नबी नातन नबी को भेजा और खुदावन ने ये स्टोरी सुनाई और कहा ये शख्स तू है, तब वो कहता है खुदावन से माफी मांगता है। खुदावन इतने अजीम है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, शायद आज भी उनका दिल सख्त हो, आज भी ये मैसेज सुनने के बाद भी वो गुनाह में रहे। साउल और दाऊद में क्या फर्क था? गुनाह तो साउल ने भी किया था। साउल जो इस्राएल का पहला बादशाह, उसमें क्या फर्क था? जब खुदावन के नबी शमूएल से बात हुई, शमूएल ने साउल से कहा कि सबको मारना है,
चाहे कुछ भी हो, जंग पे जा रहा है, कुछ नहीं रखना। लेकिन साउल ने अच्छी अच्छी चीजें रख ली। बेसिकली लिखा है कि जो जो चीज उनको अच्छी लगी उन्होंने उनको जिंदा रहने दिया। अब जैसे नातन नबी इधर दाऊद के पास आता है, उधर सैमुअल आता है साउल के पास, और साउल पता नहीं करते डेविड को क्यों कहा मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। दाऊद ने फौरन अपना सिन कन्फेस किया जब खुदावंद का बंदा आया, जब खुदावंद ने कलाम किया बेसिकली। और इधर खुदावंद कलाम कर रहे साउल से, और साउल झूठ बोल देता है, कहता है ये तो मैंने खुदा की कुर्बानी के लिए रखा है, ये तो मैंने खुदावंद को कुर्बानी देनी थी। आपको डिफरेंस समझ आ गया? कई कहते हैं दाऊद को क्यों माफ किया, साउल को क्यों नहीं। खुदावंद ने जब दाऊद से कलाम किया, दाऊद ने माफी मांगी, इधर साउल ने माफी नहीं मांगी, झूठ पे झूठ बोल के अपने गुनाह को छुपा रहा है। कह रहा है ये कुर्बानियां, ये भेड़ बकरियां तो मैंने खुदावंद को ही कुर्बानी के लिए दी है। तो सैमुअल नबी ने कहा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। फिर सैमुअल ने और बातें की, और फिर जाके उसने कहा कि खुदा, जब उसने कह दिया कि खुदावंद ने तुझसे सल्तनत छीन ली, खुदावंद तुझसे जुदा हो गया, तब जाके साउल को एहसास हुआ, और उसने फिर माफी मांगी और कहा कि हाँ मैंने झूठ बोला, मैं लोगों से डर गया था। उसने कन्फेस नहीं किया अपना गुनाह जब खुदा ने कलाम किया था। और क्या हुआ? होली स्पिरिट लेफ्ट है। खुदावंद ने रिजेक्ट कर दिया सॉल को। आई प्रे कि आज चर्च में कोई ऐसा ना हो जो सॉल की तरह, जो साउल बादशाह की तरह हो, बल्कि डेविड की तरह, दाऊद की तरह, जब खुदावंद आपसे कलाम करे आप माफी मांगने वाले बन सकें। हम ज़बूर 32 की 5 आयत पढ़ेंगे। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। हालेलुया। जब दाऊद ने इकरार किया, लिखा है खुदावंद ने कहा नो नो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। खुदावंद जो दिलों और गुर्दों को जानते हैं, खुदावंद को पता था कि डेविड का, दाऊद का हार्ट ट्रूली रिपेंटेंट है। वो सच में दाऊद का हार्ट जो दिल है वो सच में रियलाइज कर रहा है कि उससे गलती हुई। दाऊद के दिल में मेरे लिए अभी भी मोहब्बत प्यार है, दाऊद मुझसे माफी मांग रहा है। खुदावंद ने कोई आर्गुमेंट नहीं लिखा। उसने क्या, अगर ज़बूर 32 की 5 आयत पढ़े, दोबारा से पढ़े, तो ये लिखा है कि बस उसने माफी मांगी, खुदा ने माफ कर दिया, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद बहाली शुरू हो जाती है, रेस्टोरेशन शुरू हो जाती है। You are just one solid Jesus away from restoration. आप लोग सिर्फ एक खुदावंद मुझे माफ कर दूर है अपनी बहाली से, और ही ना पीछे हटते जाएं, सॉल की तरह, साउल की तरह, और ही ना गुनाह में गिरते जाएं कि खुदावंद आपको रिजेक्ट करे। अब मैं ये स्टोरी इसलिए नहीं सुना रही कि आप कहें अच्छा मैं गलती करूंगा बाद में माफी मांगूंगा, या आप गलती करने जाए बाद में माफी मांगे। गलतियों की, गुनाहों के कॉन्सिक्वेंसेस है, नताइज है। खुदावंद को के अहकाम तोड़ने के नताइज है। हाँ खुदा को माफ कर देते हैं, जैसे एक आदमी अगर किसी का खून करता है वो जेल में जाएगा, ये उसका नताइज है। अब जेल में वो खुदावंद को कबूल करता है, बेशक मरे जेल में, हेवन में वो आजाद है। तो मैं बताना चाह रही हूँ आपकी गलतियों के नताइज होते हैं। इधर दाऊद को क्या खुदावंद ने बताया, स्लाइड नंबर 10, दूसरा सैमुएल 12 बाब 10वीं आयत। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी। दाऊद को खुदा ने माफ कर दिया, बट नताइज होते हैं खुदा के काम तोड़ने से। और आगे जाके यही है, उसके घर से तलवार अलग खुदावंद ने कह दिया तो नहीं हुई। किसी और ने भी कुछ किया था और बार बार वो भी जो उसने किया था उसके सामने आता रहा। याकूब का किस को पता है, याकूब ने धोखा दिया, ब्लेसिंग ले ली ईसाऊ की, और बाद में क्या हुआ, उसको कम धोखे मिले। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं आपको पता है उसके साथ कितने धोखे हुए बाद में। तो आप याद रखें आपके गुनाह के नताइज हैं, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर सिन। याकूब ने धोखा दिया, बाद में जब लाबन ने उसको रेचल देनी थी, राखल देनी थी, उसने लिया दे दी, वो धोखा हुआ। फिर देने की
बारी हुई तो कहता साथ साथ और काम करे। जब काम शुरू हुआ तो काम में, बिजनेस में उसके साथ धोखे पे धोखा। बाद में उसके बेटों ने यूसुफ के साथ ज्यादती की, और वो एक और धोखा कि शो ऐसे किया कि जैसे कि यूसुफ के साथ कोई गलत काम हुआ है, कोई जानवर वगैरह कुछ मसला हुआ है। धोखे में धोखा। Your sins have consequences। ये मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको ये कह रही हूँ आज ही का दिन निजात का दिन है। आई नो आप कहेंगे मैं तो मसीही हूँ, मैं तो चर्च आता हूँ, लेकिन आपके दिल में आपको पता है कि आप खुदावन से कहाँ हैं, खुदावन से कितना दूर है। बाइबल में लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। क्या आप इस जहान के हम शक्ल हैं? क्या आप में और गैर मसीही में कोई फर्क है? क्या आप भी वही काम करते हैं जो गैर मसीही करते हैं? फिर हम में और गैर मसीहियों में क्या फर्क? कलीसिया को तो कहा कि we are chosen people, हम chosen हैं, चुने हुए हैं, सेट अपार्ट, हमें अलग कर दिया गया है। लेकिन हम तो दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे हो गए। आप ड्रामास देख लें, मूवीज देख लें, इतना ग्लैमराइज करके दिखाते हैं कि एक लड़की की शादी हुई है, लड़की फिर भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए तड़प रही है, और हमें वो लव स्टोरी लगती है, हाय सो सैड। इतना सिन को इतना नॉर्मल करा के दिखा दिया कि हम लोगों को वो देखने में भी अजीब ही लगता। सिन तो सिन है। क्या हम भी दुनिया के हमशक्ल हैं? झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ज़नाकारी कर रहे हैं, हम दुनिया जैसे बन रहे हैं कि नहीं? खुदावंद ने हमें सेट अपार्ट किया है, खुदावंद ने हमें अलग किया है। अगर आज आप अपने आप को मसीही कहते हैं तो अपने आप को चेक करें कि आप दुनिया की तरह गाली देते हैं, क्या आप दुनियादारों की तरह धोखा देते हैं, क्या आप दुनियादारों की तरह झूठ बोलते हैं? झूठ तो मसीहों ने, आई एम सॉरी टू से, ये तो मतलब लोगों को लगता ही नहीं कि सिन है। आपने कभी कोई गवाही सुनी, कोई स्टेज पे आके गवाही दे रहा हो, मैं पहले झूठ बोलता था, फिर खुदावंद ने मुझसे कलाम किया, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, अब मेरी लाइफ नहीं होगी? नहीं, क्योंकि इसको गुनाह ही नहीं समझते। ये गवाहियां देते हैं कि मैं ड्रिंकिंग करता था, मैं ये करता था, मैं ये गलत काम करता था। कोई ये आके गवाही नहीं देता कि मैं झूठ बोलता था, और 10 है काम में से 2 बातें झूठ के बारे में। खुदावंद ने कहा उनको नफरत है झूठ से। 6 चीजों जिनसे खुदावंद को नफरत है, 7 चीजें बल्कि जिनसे खुदा को कराई तो उसमें 2 झूठ है। और हम मसीही होते हुए भी दुनिया के हमशक्ल बनते जा रहे हैं। आज दाऊद की तरह अपने दिल को सख्त ना करें। अगर खुदावंद ने आज आपसे कलाम किया है, अगर खुदावंद आज आपसे बोले हैं, तो दाऊद की तरह अपने आप को सॉफ्ट हार्ट, अपने आप को दिल को नरम करें और खुदावंद से, खुदावंद मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, वरना साउल की तरह बहुत देर हो जाएगी। खुदावंद आपसे प्यार करते हैं, खुदावंद आपकी लाइफ के लिए एक प्लान है, एक पर्पस है, एक मंसूबा है, और उसके मंसूबे, उसके प्लान। खुदावंद आपसे प्यार ना करते होते तो आज मैं आपको ये कलाम ना सुना रही होती। अगर खुदावंद आपसे प्यार ना करते होते तो नातन नबी को दाऊद के पास ना भेजते। अगर खुदावंद साउल से प्यार ना करते होते तो सैमुएल को साउल के पास ना भेजते। खुदावंद आपसे प्यार करते हैं। खुदावंद के खादम कहते रहते हैं कि कलीसिया, खुदावंद आ रहे हैं अपनी कलीसिया को लेकर जो विदाउट ब्लेमिश है, विदाउट दाग धब्बा है। आर यू विदाउट ब्लेमिश? आर यू विदाउट ब्लेमिश? आर यू विदाउट दाग धब्बा? अगर नहीं है तो अपने दिलों को आज चेक करें। प्लीज खड़े हो जाएं सब। आई नो आज का मैसेज शायद आपको थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन हम जानते हैं यीशु आने वाले हैं, और कलीसिया जो हम सेट अपार्ट है, जो हम चुने लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं, हमें ऐसे ही रहना है, दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। आंखें बंद कीजिए प्लीज। और आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी है जो आपको खुदावंद से दूर करता है, आपकी लाइफ में कोई ख्वाहिश, कोई आदत, कोई इंसान, कोई भी चीज जिसे आपने बुत बनाया हुआ है, कोई भी चीज जिसे आप खुदावंद से आगे रखते हैं, वो बुत है। आप खुदावंद से माफी मांगे कि खुदावंद प्लीज मुझे माफ कर दे। जैसे दाऊद ने फौरन अपने गुनाह का इकरार किया, खुदावंद मैं इकरार करता हूँ, करती हूँ, खुदावंद मुझे माफ कर। शायद आप अगला कलाम ना सुन पाए। आज ही का दिन निजात का दिन है। डोंट पुट इट अवे। आज ही का दिन निजात का दिन है। और अगर आप अपने ऑलरेडी गलतियों को
तमाम कसूरों गुनाह माफी मांग चुके हैं, तो खुदावन का शुक्र करें कि खुदावन आपके कलाम में लिखा है, ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह। मैं खुदावन आपके बंदों के साथ गा सकूं कि मेरे गुनाह बख्शे गए हैं। आप खुशी से गा पाए कि वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह। और अगर खुदावन ने आपको किसी चीज से आजाद कर दिया है, तो ये ना सोचे कि आई एम परफेक्ट ना, आप होली स्पिरिट से रोज कहें कि पाक रूह तू जो मेरा मददगार है, मेरी मदद कर ताकि मैं गुनाह से दूर रहूं और अपने दिल को हमेशा नरम रखूं। हालेलुया। खुदावंद आपसे प्यार करते हैं, खुदावंद आपसे बहुत प्यार करते हैं। God loves you, you are loved, आप वैल्यूएबल है खुदावंद के लिए। जिन्होंने कभी खुदावंद को दिल नहीं दिया, आपको ऊंचा बोलने की अगर बोल सकते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दिल में भी दुआ करना चाहते हैं, रिपीट आफ्टर मी। और जिन्होंने इसके बाद बोल लूं, अगर आप क्रिश्चियन हैं और खुदावंद से दूर हैं, बोल लो कन्फेशन टुगेदर एज़ वेल। अगर आपने कभी मसीह को दिल नहीं दिया, आप कंडेम फील मत करें, बुरा फील ना करें। बाइबल में लिखे सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। सब ने गुनाह किया, ओनली जीसस वाज परफेक्ट। सब ने गुनाह किया, लेकिन खुदावंद का लहू हमें हर गुनाह से पाक करता है। आंखें बंद करें, खुदावंद से, खुदावंद मेरी सब गलतियों तमाम कसूरों को प्लीज आज माफ कर दें। यीशु मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ। यीशु मैं इकरार करता हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं। खुदावंद मुझे माफ कर, अपने बेटे यीशु के लहू के वसीला से मुझे माफ कर, और पाक रूह मेरी मदद करके मैं आइंदा गुनाह ना करूं। और अगर आप मसीही हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, आपसे गलतियां होती हैं, तो खुदावंद से कहें, खुदावंद जहां आपने मेरे इतने गुनाह माफ कर दिए, खुदावंद ये जो गुनाह मुझसे छूट नहीं रहा, मैं इसका इकरार करता हूँ कि मुझसे खुद से नहीं हो रहा, मेरी मदद करें। खुदावंद मैं माफी मांगता हूँ अपनी गलती की, पाक रूह मेरी मदद करे ताकि मैं पाकीज़गी में जिंदगी बसर करूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर आपने ये दुआ की है तो आप मुबारक लोग हैं। अगर आपने ये दुआ की है तो खुदावंद ने दाऊद का टाइम दिया माफ करने में, फौरन माफ किए। खुदावंद ने आपकी गलती के टाइम गुनाह माफ कर दिए हैं, और आप मुबारक लोग हैं, आप धन लोग हैं, आप ब्लेस्ड हैं, बिकॉज़ आपके गुनाह माफ हो गए हैं।